آج کے اس پروگرام کے دوسرے خطیب جو ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ ضیاء الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ تعالی ہیں، ان کی زبانی آپ سنیں گے توحید اور شرک۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں شیخ محترم کو مدعو کروں گا کہ کریں گے بندگی تیری ہے جب تک جان اس تن میں، کریں گے بندگی تیری ہے جب تک جان اس تن میں، نہیں ہم کو بھٹکنا ہے جہاں میں در بدر یا رب۔ فضیلت الشیخ ضیاء الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ تعالی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال اللہ تبارک وتعالی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ کی آڑ سے میری باتیں، میری آواز سننے والی پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور ہم اللہ کی جتنی بھی اس پر تعریف کریں، جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس رب نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور مومن و مسلمان میں موحد بنایا، توحید پرست بنایا، شرک سے بچایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس علاقے میں جہالت کی بنیاد پر، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسی سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جو توحید کے خلاف ہوتا ہے، شرک کے مترادف ہوتا ہے۔ شرک کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا، اور اصطلاحی تعریف ہے رب ہونے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے ماننے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ اور سارے انبیاء کرام کی یہی دعوت رہی۔ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، ان سب کی دعوت یہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لو۔
صرف ایک اللہ کو ماننا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کے اسماء و صفات کو تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ عام فہم زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے توحید کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، تاکہ بات بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اور جب تک توحید کے اندر ہم اور آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارے اعمال، ہمارے ساری محنتیں، ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ عقیدہ، توحید ہی عمل کی قبولیت کی اور عمل کی حفاظت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا، ان کی خوبیوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کی دعوتوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے چنیدہ انبیاء کرام بھی جو اس روئے زمین پر اللہ کے لیے مر مٹنے والے، اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کرنے والے ہیں، اگر ان مخلص بندوں سے بھی شرک سرزد ہو جائے، اگر ہمارے یہ بندے بھی شرک کر جائیں، اللہ کہتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی ساری محنتیں رائگاں ہو جائیں گی، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور تو اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، میرے محبوب ہیں، آپ کی نیکیاں، آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کی اچھائیاں اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ بھی اگر شرک کر لیں گے، آپ کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے شرک سرزد ہو رہا ہے، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ہماری ساری محنتیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کی وجہ سے کہیں رائے گاں اور برباد تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے شرک کو جانیں کہ شرک کیا ہے۔ توحید جب ہم جان جائیں گے تو شرک کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ توحید کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جاننے کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم توحید ربوبیت، رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، اس کائنات کا ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سارا انتظام و انصرام چلانے والا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، ان ساری چیزوں کا خالق، ان کا مدبر، یہ آسمان جو بغیر کھمبے کے اتنا مضبوط کھڑا ہے، یہ زمین جو ہموار ہمارے اور آپ کے لیے ہے، یہ پہاڑ جو اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں آئی ہیں، اسے کس نے بنایا؟ اور اس چیز کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ مشرکین مکہ تک کو بھی یہ اقرار تھا کہ ان ساری چیزوں کا، انسانوں کا، جانوروں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ اللہ رب العالمین نے ربوبیت کا ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سب کی
निगरानी करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये ईमान होना चाहिए। हमें उसी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। हमें अल्लाह ताला ने आदम से वजूद बख्शा। हम कुछ नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आदम से वजूद बख्शा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला इंसानी ईनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। क्या इंसानों के ऊपर एक ऐसा जमाना नहीं आया कि जब वो कुछ भी नहीं थे, काबिल जिक्र नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आदम से वजूद बख्शा, हमें अल्लाह ने पैदा किया। हम बेजान थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर जान डाली। हम कमजोर थे, अल्लाह ने हमें ताकतवर बनाया। जब हम पैदा हुए हमारी क्या औसात थी, क्या हैसियत थी? हम ना अपने हाथ पांव के मालिक थे, ना हम उसे खुद ब खुद हिला सकते थे, ना हम बैठ सकते थे, ना हम चल सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मेहरबानी से हमें कमजोर से ताकतवर बनाया, हमें फिर चलने वाला बनाया, हमें बचपन से जवानी दी, जवानी के अंदर कुव्वत दी, ताकत दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, दिल दिया, दिमाग दिया, ये सारी चीजें दी। आप इन चीजों की कद्र करने वाले बने। ये जो दिमाग है इसकी कद्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिलो दिमाग दिया है, फ्री में दिया है, इसकी हमें कद्र नहीं है। आज हम बेरारवी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बातों को नहीं मानते। आज मनमानी जिंदगी, काफिरों वाली जिंदगी, खैरों से बदतर जिंदगी आज मुसलमान गुजार रहा है और अपने आप को कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। जिस अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, जरा सोचिए, उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कितनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसकी एक तार को लूज कर दे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिसकी दिमागी तवाजुन बिगड़ जाती है, कभी पागल हो जाता है। सारी चीजें दुरुस्त हैं, आंखें दुरुस्त, कान दुरुस्त, नाक दुरुस्त है, मुंह सही है, ताकतवर है, तवाना है, जिस्म सही है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग से उसको महरूम कर दिया है, उसके दिमाग को जायल कर दिया है। वो आदमी देखे ना उसे उठने का शऊर है, ना बैठने का शऊर है, ना चलने का शऊर है, ना खाने का शऊर है, ना कपड़ा पहनने का शऊर है। वो नंगा धड़ंगा, गंदा, मैला कुचेला वो लोगों के सामने इधर उधर घूम फिर रहा है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग की एक तार को लूज कर दिया है। आज हमें अल्लाह ने सही सलीम दिमाग दिया है, ना उसकी कदर नहीं है। इन सारी चीजों का बनाने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह की जात है, इसे तौहीद रुबूबियत कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तख्लीक के एवज जिस चीज का हमसे मुतालबा किया है, तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत, इबादत के एतबार से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, ये तौहीद उलूहियत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए इबादत सिर्फ उसी एक अल्लाह की। इबादत का माना क्या है? नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, सदका व खैरात इबादत है, हज इबादत है, उम्रा इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है। लेकिन सिर्फ इबादत यही नहीं। अभी हमारे शेख मोहतरम असद अली फैजी अहमदुल्लाह बहुत ही कीमती बातें आपके सामने बता रहे थे। माँ बाप के साथ आज अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। माँ के साथ अच्छा सुलूक इबादत है, बाप के साथ अच्छा सुलूक इबादत है, औलाद की सही परवरिश इबादत है, बीवी के साथ सही मामला करना इबादत है, अपने घर में दीनी माहौल बनाना इबादत है। इबादत किसको कहते हैं? हुआ इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाह व यर्दा। हर वो चीज जिसे अल्लाह पसंद करता है और जिससे अल्लाह खुश होता है, इबादत है। तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, यह तौहीद उलूहियत है। और इसी का इकरार हम और आप करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक, कोई माबूद बरहक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इस कलिमा को तो हम सब पढ़ते हैं, हमारी माएं बहनें सब जानती हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कलिमा तौहीद को, लेकिन इसका माना मफहूम नहीं जानते। इसके अंदर क्या बयान किया गया है? सबसे पहले इनकार है, फिर इकरार है।
पहले इनकार फिर इकरार का ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ये एक जुज इनकार का, नहीं है कोई माबूदे बरहक, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है ऐसा कोई जिस पर हम तवक्कुल करें, जिस पर भरोसा करें, जिसके सामने कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, जिससे हम डरे, जिसकी हैबत हमारे अंदर हो, जिससे हम हाजत रवाई करें, जिससे फरियाद करें, जिससे हम कुछ मांगे। नहीं है कोई, ये पहले इनकार, ला इलाहा नहीं है कोई इबादत के लायक, ये इनकार है। और ये इनकार जब तक आदमी नहीं करेगा तब तक तौहीद का इकरार करने के वो लायक नहीं है। पहले इनकार करना है शिर्क का, कि हम शिर्क नहीं करेंगे, इबादत के लायक कोई है ही नहीं। अभी शेख मोहतरम लुकमान इस्लाही हफ़िज़हुल्लाह बता रहे थे कि हमारी इस इलाके की आज हालत क्या है। आज हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आ गई, कुछ गुम हो गया, बेटा बीमार हो गया, थोड़ी परेशानी आ गई, अभी बरहेट के अंदर ठुठिया क्या पहुंच रहे हैं। अरे वो जो खुद ठुठिया है, जो अपने ठोठापन को सही नहीं कर सकती, जो चंद रुपये की मोहताज है, उसके पास हम अपनी जरूरतें लेकर के जा रहे हैं। वो बेरोजगार थी, कुछ नहीं खाने दाने दाने के लिए मोहताज थी, तो उसने ये धंधा शुरू किया। आज की माएं बहनें, जाहिल किस्म की माएं और बहनें ऐसी जगह पर जा रही हैं। नंगटा मसान जो आपके हिरणपुर के पास कोई दरख्त है, उस दरख्त के पास कोई स्थान बना हुआ है और वहां कोई इस तरह से बाबा है, लोग अपनी जरूरत के लिए वहां पर जा रहे हैं, वहां जाकर के मांगते हैं। कोई बीमारी से शिफा मांगने जाता है, कोई औलाद मांगने जाता है, कोई रोजगार मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है। अरे वो नंगा जिसे कपड़ा मुयस्सर नहीं है, वो खुद मोहताज, वो खुद परेशान हाल, जो दाने दाने का मोहताज है, आप उसके सामने अपनी जरूरतें लेकर के जाते हैं। और ये सब के सब शिर्क है। और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है आप नहीं जानते। शिर्क के बारे में 2 आयतें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आगे बात करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिस शख्स ने भी शिर्क कर लिया, अल्लाह के साथ किसी और को साझी बना लिया, इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए थी, फरियाद सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही हाजत रवा जानना चाहिए था। अगर किसी और को आदमी हाजत रवा मान लिया, किसी और के सामने जाकर के फरियाद कर ली, तो अल्लाह कहता है ऐसा शख्स जिसने शिर्क किया, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है। व मावाहु अन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। तो शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे जब पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अय्युज़्ज़ुनूबि अअज़मु इंदल्लाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया, अन तजअलू लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम उस अल्लाह के साथ किसी और को, किसी ठुठिया को, किसी नंगे मसान वाले को, किसी और को अल्लाह के तरह मान लो, अल्लाह का शरीक बना लो। वह खलक़क, जिस जबकि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको पैदा किया है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो शिर्क करने वाले के ऊपर जन्नत हराम। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कोई आदमी अगर शिर्क कर लेता है और तौबा किए बगैर मर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐसे शख्स की मग़फ़िरत नहीं हो सकती,
इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह के साथ अगर कोई शिर्क करता है तो अल्लाह उसकी मगफरत नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा, शिर्क के अलावा चाहे कोई भी गुनाह हो, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे माफ कर दे, लेकिन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो बात चल रही थी तौहीद उलूहियत की, कि इबादत के मामले में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारे ईमान को क्या हो गया है? अपने आप को अहले हदीस कहते हो, उस अल्लाह ने तुम्हें सारी नेमतें दी हैं, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे पास उस अल्लाह की इबादत के लिए, 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं है। तुम बेनमाजी की जिंदगी गुजारते हो, मनमानी जिंदगी गुजारते हो। नमाज का छोड़ देना भी मुशरिकों वाला अमल है। कुरान में सूरह रूम में अल्लाह फरमाता है, अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, इसी का इकरार हम इसी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर करते हैं। सबसे पहले इनकार किए, उसके बाद इकरार, सिर्फ अल्लाह ताला, इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है। ये हुआ तौहीद उलूहियत। तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह तबारक व तआला के जो भी कुरान करीम के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर सिफतें बयान की गई हैं, उन सिफतों में अल्लाह को एकता मानना, अल्लाह के नाम में अल्लाह को एकता और अकेला मानना, यह तौहीद अस्मा व सिफात है। अल्लाह का नाम, हकीकी नाम अल्लाह है, और सिफाती नाम बेशुमार हैं। अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक, कुद्दूस, समी, बसीर, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें हैं। इन सिफतों में अल्लाह ताला को एकता मानना, अकेला मानना, ये तौहीद अस्मा व सिफात है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह तबारक व तआला जैसा कोई नहीं है, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। समी है, बसीर है, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है, लेकिन लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं है। अल्लाह को हम समी माने तो इस समी सिफत के अंदर अल्लाह को एक अकेला एकता माने, कि कोई और समी नहीं हो सकता है। मुराद क्या है? समी का माना क्या है? सुनने वाला। लेकिन एक इंसान सुनने वाला है, हम कब सुन सकते हैं? जब हमारे सामने कुछ कहा जाए। समी अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत है, सुनने वाला, इंसान सामे तो हो सकता है, समी नहीं हो सकता। सुनने वाला सामने जो कुछ है उसको सुन रहा है, जो हम तक आवाज पहुंच रही हम सुन रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दूर नजदीक सब सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला चींटी के पैर की आहट को भी सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को सुनता है, लेकिन हम और आप हर चीज नहीं सुन सकते। दूर और नजदीक से सुनता है। कोई कितना भी दूर हो, अगर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए कहता है कि मैं, कोई है मुझे पुकारने वाला, मुझे पुकारे, मैं उसकी फरियाद को सुनूंगा। अल्लाह तबारक व तआला समी है, बसीर है, अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है। दूर नजदीक सब चीज अल्लाह ताला देखता है। रात की तारीकी के अंदर काले पत्थर पर काली चींटी अगर चलती है, तो उस काली चींटी के काले नन्हे से पैरों को भी अल्लाह तबारक व तआला देखता है। कोई चीज छुपी हुई है उसको भी देखता है, जाहिर है उसको भी देखता है। अल्लाह की जो सिफतें, अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब कल क्या होगा, गैब की चीजें सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई और नहीं जानता। अगर हम ये सिफतें किसी और के लिए मान लें कि फला बाबा भी समी है, दूर नजदीक से सुन लेता है, वो फला बाबा के पास हमारा सामान, हमारी बकरी गुम हो गई, हम उसके पास पहुंच गए, हमारी बकरी गुम हो गई, अगर आप बता दीजिए कहाँ है।
उसने ऐसे ही तीर मार दिया, जाओ तुम्हारा वहां फला जगह। वो देख नहीं सकता, ये सिर्फ अल्लाह देखता है। अगर ऐसा मानते हैं हम अल्लाह के अलावा किसी और के साथ कि वो सुन सकता है, वो देख सकता है, ऐसे कोई गैब की बातें जान सकता है, किसी को हम हाथ दिखाते हैं पाना लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, ये सारी की सारी चीजें शिर्क हैं। ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है और इस सिफत में अल्लाह को अकेला मानना, अल्लाह तबारक व तआला को इक्ता मानना, ये तौहीद अस्मा व सिफात है। सारी सिफतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को इक्ता और अकेला मानना, ये तौहीद अस्मा व सिफात है। बहरहाल तौहीद पर हमें और आपको कायम व दायम रहना है, मरते दम तक उसी पर कायम रहना है, तभी जाकर के हम और आप जन्नती हो सकते हैं। तौहीद की फजीलत पर बहुत सारी आयतें हैं। शिर्क करने वाले के ऊपर जिस तरह से जहन्नम हराम है, तौहीद पर मरने वाले के ऊपर जन्नत वाजिब है। और इसी पर हम और आप डटे रहें। दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, शिर्क ना करें। ला तुशरिक बिल्लाही व इन कुतिलता व हर्रिकता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, तब भी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद के ऊपर डटे रहना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो शख्स जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और फिर उस पर डट गए, उसी पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम डरो मत, खौफ मत करो। और आखिर में चल करके अल्लाह तबारक व तआला कहता है ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है और उसको वो चीजें वहां पर मिलेंगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। बहरहाल तौहीद पर हम और आप डटे रहें, अपने आप को शिर्क से बचाए, वरना हमारी सारी मेहनतें बर्बाद हो जाएंगी और कोई हमारा आखिरत के अंदर सिफारिश नहीं होगा। तौहीद पर अगर हम मरते हैं तो सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल होगी और हम आखिरत में कामयाब होंगे, जन्नत हमें मिल सकती है। लेकिन अगर तौहीद पर हमारी मौत हो गई, न किसी की सिफारिश मिल सकती है, न अल्लाह तबारक व तआला से किसी तरह की कोई माफी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए तौहीद को अपनाएं, शिर्क से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने ज़्यादा इन तमाम कही सुनी बातों को समझने और उसके ऊपर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।